Hello, everyone, and welcome to yet another podcast of My Finergy. Today, I'm very happy to host Ma'am Sapna Sawant from Mumbai. Ma'am is a chartered inheritance and succession planner, and she offers 360-degree financial planning for her clients. She has been in this field from last 7 to 8 years and offering all products and all types of financial management to her clients. She is a daughter of a sales tax officer, so I believe financial planning or financial advising was a natural pull for her. She is also spouse of a renowned Bollywood actor, Mr. Kamlesh Sawant, and Sir's role in Drishyam movie as Inspector Gaitonde, I believe everyone loved him. So here I am welcoming ma'am, and it's a privilege, ma'am, to have you. So let me start by asking you. I know that you were a crew member of Air India, staff, and you were flying for 9 years plus. So from flying to becoming a financial advisor, how this transformation happened. Very good morning, and thank you for being me here. Yeah. And about your question, from flying to financial planning, I can say this is my journey from plane to plan. So from taking care of the passenger to drop them to their desired destination, the same thing I am doing in my financial plan. To I help people to reach their goals. Absolutely. I think, that's the best way to put it up. Taking one person from point A to point B in financial terms, from the present journey to the desired financial journey, I think, fantastically put up. Ma'am, there are so many financial advisors, in a city like Bombay, which is a financial hub of India. How do you differentiate yourself from the others? As I said, it is my job for last many years. Where in my previous job, I was helping people to reach their destination. So in financial industry, there are many players in the field, but I can differentiate myself as a different financial planner because I'm an inheritance planner as well. So from generating the wealth, accumulation, protection till the inheritance. So I give 360 degrees service from creation, protection, and handing over to the next generation. So that entire process makes me different than other financial advisor. Okay. सक्सेशन प्लानिंग इज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट. इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में बताओगे. मे बी अ यूज केस, कौन से क्लाइंट के लिए, विच क्लाइंट्स आर एप्ट क्लाइंट्स और एप्ट टारगेट सेगमेंट फॉर दिस सक्सेशन प्लानिंग. ऐसा आप थोड़ा डिटेल में बताओगे तो ऑडियंस को थोड़ा अच्छा रहेगा. Yeah, thank you for highlighting this subject. Basically, the awareness of about this subject is very less in India. The succession planner, हमारे इंडिया में ये myth है कि succession planning, inheritance planning ये अमीरों के चोचले है. But it is not like that. Everybody who is earning money, whose family is dependent on them. So succession planning हर वो एक बंदे के लिए है जिस जो ब्रेड विनर है अपने फैमिली के लिए. तो बेसिकली क्या होता है जो सक्सेशन प्लानिंग इसलिए करना चाहिए कि यू नेवर नो. We are aware about our date of birth, but we don't know about date of death. That can come anytime. So मेरे जाने के बाद what I want to give to my family, a smooth wealth distribution or the chaos. To avoid that chaos, you need to do the succession planning or the inheritance planning in a advanced way. So this is all about where you have to plan how you are going to distribute your wealth in among your family. So you're saying that succession planning is important for everyone. जैसे Yes, आपने बोला definitely. कि ये अमीरों के चोचले नहीं है. It is for Yes. everyone. All those people who have some wealth to leave to their family or some inheritance, they have to plan it. Yes, that's a fantastic thing, And after, I think Ambani family story is one of the most apt story for understanding the inheritance. Even the Amir people had not done the
inheritance planning. At some point of time, that was one of the thing that the senior Ambani left undone. Right. I'm very Yes. glad that you are focusing on this, because हम लोग वेल्थ तो बिल्ड करते हैं हमारे अपनों के लिए, लेकिन हमारे बाद अगर वो वेल्थ के लिए इश्यूज होते हैं, और डिस्प्यूट होते हैं, तो जो बंदा इतने साल अपने मेहनत करके अपने फैमिली के लिए कुछ करता है, उसका मोटिव इमोशनली तो सेटिस्फाइड कभी नहीं होगा. आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग. सो यू आर सेइंग दैट सक्सेशन प्लानिंग इज फॉर एवरीवन. Yes, definitely. And in succession planning, everyone has to write their will. Okay. Whether it is above 30, above 50, above 60, any age of person who is the, we can say, karta of that family, who has Hmm. a wealth, he Hmm. has to write a will. So Hmm. ये सिर्फ बूढ़े लोगों का सब्जेक्ट नहीं है, but Hmm. the Hmm. person who is a younger, who has started their family, they have to do the same ओके, will तो आप writing. बोल रहे हो जिसने फैमिली चालू किया है, समवन हु इज मैरिड एंड हैज किड इज द राइट कैंडिडेट फॉर गेटिंग इनटू सक्सेशन प्लानिंग. Yes, yes. ओके. ओके. And that is also not restricted to male family member. It is for the हम्म. female family member as well. Nowadays, both हम्म. are equally earning. So हम्म. both has the हम्म. same status in the family. So both should have their wills. हम्म. हम्म. So मैम, ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है? see, we can say, जब हम कोई घर बनाते हैं, तो वी मेक श्योर हमारा बेस जो है वो मजबूत होना चाहिए. सो व्हाई वी मेक दैट बेस सो स्ट्रांग, सो उसके ऊपर जो हम ईंटें लगाने वाली है, तो उसको जो सपोर्ट होना चाहिए, वो तो बेस से ही शुरू होता है. तो हर बिल्डिंग के बेस के जैसा ही हमारा इंश्योरेंस रहता है. इफ यू आर नॉट प्रॉपरली इंश्योर्ड, योर वेल्थ कैन वैनिश इन अ मिनट. सो obvious, and the insurance is the well protection of your wealth. So we always do the safety for, we look after the safety first, then we suggest people for the wealth generation platforms. सो फर्स्ट स्टेप इज फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और रिस्क प्रोटेक्शन, उसके बाद वेल्थ क्रिएशन. Yes. ओके. अगर I can tell you in my aviation way, विमान के हवा का दबाव कम हो जाए तो एक मास्क आपके सर के ऊपर से निकलेगा. फर्स्ट यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, देन अपने बाजू वाले को मास्क लगाइएगा. तो ये स्टेटमेंट उसी के लिए, जो बंदा खुद ही प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा, वो दूसरों को क्या प्रोटेक्शन देगा. सो दैट्स वेरी द वेरी वेरी वेल सेड मैडम. ये एग्जांपल, ये जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस दिया है आपने ना, जब भी हम लोग फ्लाइट में जाएंगे, मेरे को लगता है हम लोग को याद आएगा कि रिस्क मैनेजमेंट ऐसे होता है. आई थिंक yes, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. it's a live example for everyone. यस. 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 इनफैक्ट मैडम, फाइनेंशियल सक्सेस, बहुत से लोग बोलते हैं कि इट इज मोर ऑफ अ माइंडसेट, मोर टू डू विथ psychology and mindset on the financial growth. So as an advisor, do you think advisors should contribute more psychologically than with the calculations to their client? Yes, financial planning is more than the numbers and the calculation. Basically, we always think about the emotions, we always think about the attachment, and we always think about the effect of that particular financial planning on that particular individuals. For example, अगर मैं किसी बंदे को एक 10 करोड़ का फाइनेंशियल प्लानिंग करके देती हूँ, his mind is not ready to accept that 10 करोड़ रुपीज. बोलते हैं ना, भगवान देने के लिए खड़ा है, अगर आपकी झोली छोटी हुई तो आप क्या लोगे उसमें से. सो योर True. माइंड ब्लॉक शुड बी ओपन. True. बहुत सारे लोगों को माइंड ब्लॉक, मनी ब्लॉक्स रहते हैं. दे डोंट बिलीव इन देमसेल्फ कि मैं इससे ज्यादा कमाने की मुझे क्षमता है. भगवान को आपको देने की क्षमता है, लेकिन आपको लेने की क्षमता है क्या आपके पास. सो दैट्स द रीजन आई केप्ट माय कंपनीज नेम SK Wealthy Mind. सो आई बिलीव माय wealth generates in your mind first, then it comes in the reality. So mindset is very much important in your wealth generation.
So true. we do give importance for the mindset and the mind blockages. Absolutely. This is fantastic, मैम। और आजकल क्या हो रहा है कि रिसेंटली आईआरडीए ने बोला था कि बैंक्स को कि आप मिस सेलिंग कर रहे हो इंश्योरेंस प्रोडक्ट वगैरह, दैट हैज टू स्टॉप। मिस सेलिंग इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी कॉमन इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द टारगेट्स एंड अदर थिंग्स। एज अ ट्रस्टवर्दी फाइनेंशियल एडवाइजर, क्या स्टेप्स है जिससे आप मिस सेलिंग अवॉइड करते हो? First of all, we don't sell. We check the requirement of that individual. अच्छा। If he is not required any kind of insurance, he is already insured. So we focus on their wealth generation and wealth building. Because mis-selling, yes, we have seen many cases like people at the age of 50 has been sold a life insurance policy. एक बंदा अगर 60 के एज में आ रहा है, 50 के एज में आ रहा है, उसको आप टर्म इंश्योरेंस देके कुछ मतलब है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म इंश्योरेंस? इट इज अ प्रोटेक्शन ऑफ योर इनकम एंड योर फैमिली। बाय द टाइम यू हैव रीच 50, आपका आधा काम तो आपने कर दिया है। नाउ यू शुड फोकस ऑन द रिटायरमेंट प्लानिंग इंस्टेड ऑफ द इंश्योरेंस। सो मिस सेलिंग के लिए आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट पीपल, or in fact I will suggest advisor, don't focus on the selling, focus on the confidence building. आप एक इंश्योरेंस सेल करने जाओगे, आप एक ही बेच पाओगे। अगर आप विश्वास जीतोगे तो आप 10 लोगों को प्रोडक्ट बेच पाओगे। सो दिस इज माय हम उस ये ब्रीद वाक्य है हमारी कंपनी का कि डोंट सेल द प्रोडक्ट, सेल योर कॉन्फिडेंस। यस, बेसिकली ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल विनिंग अ क्लाइंट। और आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि क्लाइंट को प्रोडक्ट बेचो ही मत। यस, तो उनकी नीड समझाओ, उनकी नीड एनालाइज करो, और फिर जो रिक्वायर्ड है, जैसे आपने कैलकुलेशन भी दिया कि 50 उम्र के बाद फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो नहीं होते, तो उसके बाद टर्म इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, आपको रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत है। सो ये नीड एनालिसिस, ये गोल प्लानिंग आप बोल रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके लिए कुछ प्रोसेस है आपके कंपनी में, वेरी न्यू फॉलो अप प्रोसेस? अगर आप कोई नया क्लाइंट आपको समझना चाहता है तो कैन यू जस्ट ब्रीफ अबाउट द प्रोसेस दैट यू फॉलो, मतलब कैसे होता है ये सब कुछ? यस, आई वुड लव टू मेंशन इन दिस प्रोसेस। जब भी कोई नया क्लाइंट हमारे यहाँ पे अप्रोच होता है, यस, इट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। वी फॉलो सम प्रोसेस बिफोर ऑनबोर्डिंग एनी क्लाइंट। जब भी कोई नया क्लाइंट हमारे यहाँ पे अप्रोच करता है तो फर्स्ट हम कॉन्फिडेंटली, हमारे पास एक सिस्टम है जिसे हम फिनर्जी ऐप कहते हैं। तो दैट प्रोसेस, दैट लिंक वी सेंड टू आवर क्लाइंट where they have to fill their entire data, and they themselves only analyze their financial fitness, जिसे हम लोग फाइनेंशियल फिटनेस एनालाइजिंग कहते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर टेक्स योर हिस्ट्री, देन दे एनालाइज वेयर यू आर लैकिंग, विच मेडिसिन टू बी गिवन। तो उसी प्रोसेस को हम भी फॉलो करते हैं थ्रू फिनर्जी ऐप, where we send the link to the client and client has to fill their data in that. तो वो खुद ही समझ जाते हैं कि अरे मुझे ये करना था, आज मैंने 2 लाख का ही मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है एंड द मेडिकल एक्सपेंसेस आर गोइंग सो हाई एंड दिस 2 lakhs इज नॉट इनफ फॉर माई फैमिली। तो वो खुद से ही हमें कहते हैं कि मैडम हमें हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ानी है, मैडम मेरा टर्म इंश्योरेंस है लेकिन अभी तो मेरी सैलरी भी तभी मैंने ली थी, अभी तो मेरी सैलरी बढ़ गई, मेरी इनकम बढ़ गई, सो आई वांट टू इंक्रीज माय टर्म इंश्योरेंस। तो हम उस हिसाब से उनको सजेस्ट करते हैं कि यू शुड गो विथ दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, और यू शुड प्रोटेक्ट योर सेल्फ इन दिस एक्सटेंट। सो this process is helping us a lot to analyze the need of the client. मतलब आप बोल रहे हो कि जैसे डॉक्टर डायरेक्ट मेडिसिन नहीं देता है, पहले स्टेथोस्कोप में चेक करता है, थर्मोमीटर में चेक करता है बुखार कितना है, उसके बाद सिस्टमेटिकली उसको ट्रीटमेंट का प्लान देता है।
वैसे ही आप पहले क्लाइंट का नीड एनालिसिस करते हो, उसका गोल प्लानिंग करते हो, और फिर प्रोडक्ट आ जाता है बाद में एज अ सॉल्यूशन। फैंटास्टिक। आई थिंक इससे ना एक बहुत आपने जो बात किया है अभी, दिस इज द फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजिंग एज पर मी। आगे चल के क्लाइंट को वैसे ही एडवाइजर चाहिए होंगे जो उनकी नीड समझे, ना कि जस्ट प्रोडक्ट सेलिंग करे। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल दैट यू आर सेटिंग, मैडम। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस इज being followed by you, and all the clients that are listening to you, I'm sure उनका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बहुत आगे जाएगा, and all the advisors who are listening to you, they will take an inspiration from you. I'm very Thank you. happy on that. मैम, हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है यू नो जो आफ्टर कोविड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया है सबकी लाइफ में। व्हाट डू यू थिंक, हेल्थ इंश्योरेंस बाकी सब इंश्योरेंस से पहले आना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस बाद में आना चाहिए? वो कहते हैं ना, जब हम खाना बनाते हैं, उस खाने में एक चुटकी भर भी नमक ज्यादा पड़े तो अपना पूरा खाना बिगड़ जाता है। उसी तरह करेक्ट। से आपके वेल्थ क्रिएशन में एक या दो या तीन बार भी हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए तो आपका यस। जो एक्युमुलेटेड वेल्थ है उसे खत्म होने के लिए 2 या 1 दिन से भी ज्यादा नहीं लगता। ट्रू। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवनस लाइफ। और उसमें भी आपको ये एनालाइज करना है कि एम आई वेल इंश्योर्ड, बिकॉज आज मेडिकल इंडस्ट्री इज ग्रोइंग सो हाई, द एक्सपेंसेस आर गोइंग हाई। आप छोटे से छोटे टाउन में भी जाओगे तो भी आपको एक हॉस्पिटलाइजेशन में आपके 1.5 से 2 लाख रुपए ऐसे ही चले जाते हैं, स्मॉल छोटे से बुखार के जैसे इसके लिए भी, ट्रीटमेंट के लिए। So you should have enough health insurance which can cover your entire family. और इसमें मुझे और एक पॉइंट हाईलाइट करना है कि मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि मेरे कंपनी ने मुझे हेल्थ इंश्योरेंस दी है सो आई डोंट रिक्वायर माय पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस। सो दिस काइंड ऑफ पीपल आई रियली टेल देम कि आप शादी एक ही बार करते हो, आप प्यार एक ही बार करते हो, लेकिन आप कंपनी बार बार चेंज करते हो। So, if you are not loyal to your company, why company will loyal to you? तो उसी हिसाब से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी लैप्स होने की बहुत सारी गुंजाइशें रहती है। So, I would like to give you an example of this. One of my clients' friend, he was working with one multinational company, and he resigned, and in a week time, he is supposed to join another company. But during that 1 week time, he got a brain stroke. He was not covered here and he was not covered in new company also. Just imagine what would have happened with his bank balance. So this small gap also can make a big hole in your bank balance. So that always keep a small amount of personal health insurance. This I will definitely would like to advise through your channel to everyone. हेल्थ इंश्योरेंस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। Yes. आप मैडम, अगर आपके पास एक, अभी बहुत सारे क्लाइंट आपके पास, आई बिलीव यू हैव मोर देन 300 क्लाइंट्स whom you are advising, specifically on goal based journey of their financial growth. आपके हिसाब से आप उनका सक्सेस कैसे मेजर करते हो? लाइक जो क्लाइंट अभी आपके पास 5 साल के ऊपर जो है, आप क्या पैरामीटर रखते हो कि आप समझ सकते हो कि मेरा क्लाइंट अभी सक्सेस की जर्नी पर है? जो क्लाइंट मुझे फोन करके बोलता है कि ये वीकेंड हमने मूवी देखी है, ये वीकेंड वी वेंट वेरी पीसफुली फॉर अ डिनर विथ माय फैमिली, दैट इज अ सक्सेसफुल क्लाइंट विथ अ पीसफुल माइंड फॉर मी। पीस ऑफ माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है, बेसिकली जर्नी में तो आपको इट्स लाइक यू कैन ट्रेवल इन अ ट्रेन विदाउट टिकट और विद टिकट। विदाउट टिकट जाओगे तो पूरा जर्नी सो नहीं पाओगे। आई जी। थिंक टिकट लिया तो सो पाओगे। इट्स दिस तो पीस ऑफ पाओगे। माइंड दैट इज important. Sometimes in your life nothing wrong might happen, your life might be very good, very healthy, लेकिन
अगर वो टिकट लेते हो आप इंश्योरेंस का, तो एटलीस्ट द जर्नी विल बी गुड. एंड यू नो दैट्स अ फैंटास्टिक वे टू पुट इट अप. इफ द क्लाइंट इज एंजॉयिंग his money with his family, going for a trip, enjoying those movies every weekend, going for dinners, and is not worrying about spending money, that is the parameter of success. Fantastic, Yes. fantastic. I think that's something that I will remember for a long time. मैम, बहुत सारे एडवाइजर आज एक अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, वेर इन बहुत सारा पेड एडवर्टाइजिंग करते हैं, अपने आप को बहुत सारा विजिबिलिटी देते हैं. बट एट द कोर, एक एडवाइजर का ब्रांड आपके हिसाब से कब बनता है? आपके हिसाब से यू डोंट रिक्वायर एनी लाइमलाइट टू बिकम अ गुड एडवाइजर. जब आपका क्लाइंट आपको बोलता है कि मुझे पता नहीं 5 साल से मेरे पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है, बट आई नो यू आर देयर टू टेक केयर ऑफ माय पोर्टफोलियो, दैट मेक्स मी अ सक्सेसफुल एडवाइजर. So it is the client's trust that is the biggest brand activity for an advisor. यस, बिकॉज सी हम लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारे रील्स देखते हैं, लेकिन वो रील्स देखने के बाद भी क्लाइंट आपको ही कॉल करता है बिकॉज ही ट्रस्ट यू. दैट Yes. मेड मी अ बिग ब्रांड. Yes. Ma'am, आई नो, in our previous interaction, आपने मेरे को बोला था कि आप एजेंसी नहीं रन कर रहे हो, आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो. एंड आई नो, हैंडलिंग मोर देन 300 क्लाइंट्स इज नॉट अ इजी जॉब. तो आप कैसे टाइम मैनेज करते हो? एंड आई नो यू आर ऑल्सो होम कंप्लीट home manager, I'm taking care of your family as well, and doing business in a city like Bombay. ऑपरेशंस का काम रहता है, सेल्स का काम रहता है, क्लाइंट्स के अदर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का काम रहता है. आप अपना दिन कैसे मैनेज करते हो एज फार एज टाइम मैनेजमेंट इज कंसर्न? As you said, you are a business woman and entrepreneur and family handler also. Yes, but I can say I am not a business person. I am not a entrepreneur. I am a missioner. I believe I am on mission where I am trying to make people financial free with a peace of mind. So when it comes into the handling entire process, as an entrepreneur, I don't get into all small things. I have created a system. I have set a system. I have set a staff for everything. Where when onboarding the client till his succession, we have entire process in place. Each and every process we have dedicated person to handle, and dedicated customer care, dedicated uh, question solver, dedicated uh, we can say admin assistant. So my job is to manage everything and keep in touch with my client instead of getting into the operation. Because I'm a face of my company, I should be available for my client, not for the admin job. So my job to be in touch with my client. So they should feel like मेरे फैमिली का बंदा ही वहां पे बैठा है, मुझे मेरे पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं. So I am that person for my and all clients. एक्चुअली मीटिंग योर क्लाइंट्स ऑन अ डे टू डे बेसिस इज योर प्राइम जॉब. एंड बाकी सबके लिए आपने एक प्रोसेस और सिस्टम डाला है. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. मैम, फाइनेंशियल एडवाइजिंग इज नॉट अ इजी जॉब, बिकॉज आपको अपडेटेड होना पड़ता है कंटिन्यूसली. नॉलेज गैदर करनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है, लेटेस्ट क्या हो रहा है इसके बारे में समझना पड़ता है. तो आप on updating knowledge or updating yourself, what do you do? What's your plan of action for that? See, I can say it is my habit or it's my interest to keep learning new things. So when I started this journey, I didn't want to become an ordinary financial planner or ordinary advisor. So that I selected the niche
called succession and inheritance planning. So I took a proper education on that subject from American Academy of Financial Planning, Oh. where I did a chartered inheritance and succession planner. Plus, from them only, I am doing chartered wealth management. So that is a later part, but the succession planning and inheritance planning has covered everything where I can work on the wealth generation, wealth accumulation, then wealth protection and wealth distribution. These all four parameters has come together in this course. So and every day there are new articles coming on in newspaper, on YouTube channel, or I have some apps where I keep getting updated new current affairs also. But yes, there are I keep attending many financial events as well. Which So boost my knowledge. my next question to you was that only. How much is continuous training important for advising business? Uh, our economy is rapidly growing. With the growing economy, we have lot many changes are coming in the system. So as an advisor, as a financial expert, you have to keep a track on economy and the uh, activities happening around it. So you have to be updated for each and every news. What Miss Sitaraman is going to say tomorrow? What Mr. Modi is going to say tomorrow? What that news is going to affect on our economy? What is going to happen in international market? कहाँ वॉर होने वाला है, इस वॉर का क्या इफेक्ट हमारे इकोनॉमी में होने वाला है, कौन से सेक्टर में ज्यादा इफेक्ट होने वाला है, तो उस सेक्टर में हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं उस सेक्टर को बाय इन्वेस्टिंग इन दैट, और वी कैन टेक इट एज ए अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन दैट सेक्टर. जैसे हमारा डिफेंस सेक्टर है, जैसे ही वॉर शुरू हुआ डिफेंस सेक्टर के स्टॉक फटाफट ऊपर जाने लगे. तो वी हैव टू कीप ट्रैक ऑन ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ द इकोनॉमी. Yes, So yes. for that you need to keep updating yourself. Yes. आपने एक अच्छी बात की कि हमारा इकोनॉमी ग्रो हो रहा है, एंड वन ऑफ द थिंग दैट इज आल्सो ग्रोइंग इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. इट इज बिलीव्ड दैट बाय 2032 इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वुड रिच अराउंड 80 years. उसका मतलब 60 साल के बाद जो रिटायरमेंट एज है 20-22 साल हम लोग और जिएंगे. तो रिटायरमेंट प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है मैडम? Yes. See, here I can say, some of the YouTuber or some of the financial advisor, they are very internationally well-known advisor are there. One of that advisor says that Indian lives for 27,000 days. So in then 20,000 days, if you can part the four parts, the half fourth of the 0 to 20, 20 to 40, 40 to say 80, 40 to 60, 60 to 80, ऐसे चार भाग होते हैं हमारे लाइफ के. 0 to 20 में आपका एजुकेशन होता है जिसमें नो इनकम रहता है. Then 20 to 40 you go on a new job, you get a married, you get a new car, you get a new house. Then that is a income period. Then 40 to 60, again there is a second income period where you change your job, you change your house, you change your car. After say 60 to 80, again that part of life you are not going to earn any income. So ये जो 20 से लेके 60 तक का जो आपका एज लिमिट है, यहाँ से ही आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है जो नेक्स्ट 80 इयर्स तक हो. तो आपको जो व्हेन आपका इनकम बंद हो जाएगा, तब आपको जो रेगुलर आपके खर्चे तो बंद होने वाले नहीं है. वो तो एज पर द इन्फ्लेशन रेट, ये तो आज का 100 रुपया, कल का वो तो 1000 रुपया ही होने वाला है. तो यू शुड थिंक नॉट ओनली द रिटायरमेंट प्लानिंग, यू शुड थिंक अबाउट द इन्फ्लेशन रेट ऑल्सो. आज मुझे घर चलाने के लिए अगर महीने को 1 लाख रुपीज लग रहे हैं, तो आफ्टर 10 years that 1 lakh rupees is going to be a 1,25,000. So we should, while doing the retirement planning, we consider the inflation rate as well. So
Yes, definitely you should plan retirement planning the day you go on job, you start earning. तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही था कि आइडियली कौन से एज से रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए क्लाइंट्स को शुरुआत करनी चाहिए? एज आई सेड, जिस दिन आपको इनका हाथ में पैसे आने शुरू हुए उसी वक्त आप आपका इनका रिटायरमेंट प्लानिंग कर लो। जितना राइट, जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग करोगे उतना जल्दी आप रिटायर होने के लिए फ्री हो जाओगे। राइट। मतलब आप बोल रहे हो कि ट्रेडिशनली 60 साल तक रुको मत, फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो बहुत जल्दी आप पा सकते हो। यस ग्रेट, ग्रेट, यस। ग्रेट, ग्रेट। मैम, अभी और in fact I will say now the generation is fantastic, they are thinking about early retirement। अभी किसी को 60 साल तक या फिर 50 ईयर तक जॉब नहीं करना है। एवरीबडी से मुझे तो 45 या 50 तक बस हो गया, बिकॉज द वर्किंग स्ट्रेस इज ऑल्सो दैट मच, सो पीपल डोंट वांट टू गो सो लॉन्ग फॉर टू अर्न मनी। सो अभी से आई रियली अप्रिशिएट दिस जनरेशन, दे आर थिंकिंग अबाउट देयर रिटायरमेंट, so they should positively start saving as early as possible. यस मैम, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। ओके, बहुत सारे एडवाइजर्स ऐसे ऐसे हैं अभी जो हमको देख रहे होंगे, हु हैव जस्ट स्टार्टेड। ओके, स्पेशली विमेन, आप आपका क्या एडवाइस है ऑल दोज यंग विमेन हु आर स्टार्टिंग अप एज फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन द रिसेंट टाइम्स? For women, I'm really very I have a lot so much soft corner for the women. हमारे मराठी में एक कहावत है, मुलगी शिकली प्रगती झाली। ओ, ओ, सो एग्जैक्टली। एक एक लड़की, एक वुमेन घर का पूरा इकोनॉमी हैंडल कर सकती है इफ शी गेट अ चांस। यस। बिकॉज आपको पता नहीं होता कि हमारी माँ, व्हेन वी वर स्मॉल, हमारी मम्मी हमें हर अलग अलग डब्बे में से पैसे देती थी। तो शी नोज द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट, पावर ऑफ सेविंग। So women, I really appeal ladies or the women should come in the financial industry. They know economy better than others. हमारे इंडिया की इकोनॉमी भी तो एक लेडी ही तो चला रही है। ट्रू, तो ट्रू। I have seen I really feel sad when a lady who is well educated, she's on the top level of the position in the company. When she says, मेरे घर का और मेरा investment तो मेरा husband देखता है, मेरे पापा देखते हैं. So I feel very pity for them. They have a power to handle entire team, but they cannot handle their finance. But I really appreciate women who are really handling everything. So I appeal all the girls to please choose financial industry. It is a fantastic and satisfying job. Great, great, great. Thank you, ma'am. And you rightly pointed out, uh, women is the most powerful financial advisor, for the home or for your family. आपने जो एग्जांपल दिया ना, वो एक डब्बे में डाल के रखते थे कि ये खर्चे के लिए, ये खर्चे के लिए, वो इतना Yes. ऑर्गेनाइज, आजकल उसको ऐप में डाल के बजट मैनेजमेंट बोलते हैं, लेकिन यू नो ये टेक्नोलॉजी मदर्स के पास तो बहुत पहले से थी। सर ये टेक्नोलॉजी नहीं रहती तो इन्फोसिस भी नहीं बनता। ट्रू, ट्रू, ट्रू। यू आर राइट, Yes. यू आर राइट। आई थिंक I सुधा मैम really, ने बहुत really बार बोला है। admire Sudha Murthy ji. She is a fantastic and very strong lady. Yes, yes, yes. I think you rightly put it up, and I think your words would inspire a lot of women to take up, especially financial advising job, because they are good at it. And हमारे इंडस्ट्री में भी कितने सारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स के गुड एग्जांपल्स है, स्पेशली इन इंश्योरेंस, who have reached to amazing heights, and you are one of the example that I really appreciate. I know you from many years now, ma'am, and keep doing the good job. Fantastic. We're all proud of you. Thank you. Yes, yes, मैम। एक थोड़ा रैपिड फायर करते हैं, बिकॉज एक ऑडियंस को थोड़ा आपका क्विक रिस्पॉन्स देते हैं ऑन सम फाइनेंशियल थिंग्स। सो आर यू सेट मैम फॉर अ रैपिड फायर राउंड? Let me चॉइस। wait. यस, Yes, yes, I'm ready.
मैं आपको चॉइस भी दूंगा, सो टू मेक Oh, you थिंग्स are giving me राइट। choice, then या okay. या मतलब रैपिड फायर विद चॉइसेस, स्पेशली बिकॉज रैपिड फायर से हम लोग थोड़ा शॉर्ट में लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, Sure. राइट। सो आपके हिसाब से बेस्ट वेल्थ क्रिएशन टूल क्या है? एसआईपी, डायरेक्ट स्टॉक या रियल एस्टेट? I believe SIP is the best tool to create a wealth where you can accumulate wealth, or after that you can distribute, and with the help of SWP, you can take a leverage of that wealth. ओके, वन प्रोडक्ट दैट यू रेयरली रिकमेंड, ट्रेडिशनल प्लान्स, चिट फंड्स और क्रिप्टो? Uh, I would say crypto. ओके, ओके। सो राइट प्रोडक्ट सजेशन क्या होता है? सिंप्लीफाइंग फाइनेंसेस और टॉकिंग अबाउट रिटर्न्स? Simplify finances. Returns तो ऐसे भी आने ही वाले हैं. If somebody is not convinced with the plan, they will be confused. इंश्योरेंस का प्रेफरेंस आपका क्या है? अगर मैं तीन चीजों में से आपको बोलता हूं कि फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट, आपका क्या आंसर होगा? टर्म प्लान, यूलिप प्लान कि एंडोमेंट प्लान? Definitely term plan to protect your family. मोस्ट अंडररेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट, एनपीएस, लिक्विड फंड कि हेल्थ इंश्योरेंस? Health insurance. ओके, यस। सो अगर आपके पास आज 10,000 रुपया है टू इन्वेस्ट, वेयर वुड यू इन्वेस्ट पर्सनली? आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट किधर जाएगा 10,000 का? ईएलएसएस में, फ्लेक्सी कैप फंड में कि डिजिटल गोल्ड में? As a woman, I will put in gold, but the answer will be flexi cap. ओके, ओके, ओके। तो एज एन एडवाइजर फ्लेक्सी कैप, एज अ वुमेन गोल्ड। ग्रेट, ग्रेट। मैम, अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं होते, आई नो यू वर अ फ्लाइंग क्रू फॉर एयर इंडिया, आपने फाइनेंशियल एडवाइजिंग चूज किया, अगर फाइनेंशियल एडवाइजिंग नहीं होता तो क्या होता? वुड यू बी अ टीचर, अ कोच और सम होटेलियर? क्या होते, मतलब व्हाट वुड बी द थर्ड ऑप्शन ऑफ चॉइस? I would be a coach ओके, ओके, because ओके। coach can guide you. Coach can take you to achieve your goal. Okay. Something similar to what you are doing. You are doing financial coaching now. Okay. Yes. Biggest mistake clients make: delaying investments, mixing insurance and investment, or chasing past returns. Delaying investment. So, अभी नहीं, बाद में करते हैं. Yes. That Most attitude. of the time we get these answers from the people. They ये नहीं next year देखते हैं. So वो एक साल में आप करोड़ों का नुकसान करके लेते हो. अगर आप आज 1,000 रुपए की SIP करते हो, वही SIP आपको 25 साल में 3 करोड़ देने की ताकत रखता है. So don't delay your investment. True, true. Ma'am, thank you so much. It was so wonderful talking to you. I'm sure आज जो आपने बात की है ना, स्पेशली इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन प्लानिंग का, वो जो मिथ ब्रेक किया आपने कि दिस सक्सेशन प्लानिंग इज नॉट ओनली फॉर रिच पीपल, इट इज फॉर एवरीवन। बाद में आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे जो फोकस करके बोला कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, और आपने जो प्रोसेस के बारे में बोला कि एक प्रोसेस होना चाहिए नीड एनालिसिस करने का, रिक्वायरमेंट समझने का, और प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करना चाहिए। आई थिंक हमारे आज के पॉडकास्ट में इतने सारे चीजें सीखने की है। आई एम श्योर एज a new advisor who is starting off, or even an experienced advisor who is starting, who is a successful entrepreneur in this business, would take inspiration from what you said, and आपके clients would be very happy, I'm sure, after listening to your very heart to heart conversation on the trust factor जो आपने बोला, और आपने जो डीपली समझाया हमको कि क्लाइंट का खुशी, क्लाइंट की जो फाइनेंशियल फ्रीडम उनको और पीस ऑफ माइंड जो आप देना चाहते हो, अगर आप वो अचीव करते हो, तो जैसे आपने बोला कि आप एक मिशन पर हो, and I think that is quite an inspiring thing. I'm sure, मैम, ये जो पॉडकास्ट हम लोग ने आज कंप्लीट किया, इट वुड बी वन ऑफ द मोस्ट लव्ड पॉडकास्ट
by women entrepreneurs especially. And I'm sure there is so much to learn here. I thank you so much, and I wish you all the best. And I look forward for having another round of podcast with you at some point of time, especially on inheritance and succession planning. थोड़ा deep dive करते हैं कभी in just sometime in near future. And looking forward, ma'am. Thank you so much for giving us time, and it is a pleasure. It's my pleasure to having me on this channel and giving me platform to express my view on the investment and the financial planning, and especially on inheritance and succession, which is actually require awareness in India. So definitely, as you said, next time we will go and deep dive in this on this subject. Yes. And thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you. Yes. Thank you.